Good morning, students. So let us begin our today's class. We have already seen two Python programs, and today we are going to see the third program that is based on Python. Let me explain you first what all things we have to know before beginning creating this program. All right. So I will be opening Notepad, and in Notepad I will explain you the things that we should know. The first most thing that we will be doing in this program will be we will be taking some input from the user. All right, now while taking input from the user we will see what all things we have to take as input. Okay, so the first thing that we will take as input will be the item name. We will see what item name the user is going to input, and then we will be asking for the price of the item that the username has entered. Okay, price of the item. Next thing, we will also be asking for the user for the GST rate of that product. You already know all the products right now have a GST rate, so we will be asking for GST rate for that product. Okay, and next thing that we have to see is that in this we have to input item name, price and GST from the user. These three things will be given as an input from the user, and the next thing, the total amount that user has to pay will be the price of the item plus the GST rate of the item. So the total amount that user needs to pay will be price plus GST amount. This will be the total amount that user needs to pay. Okay, now GST is divided into two parts. GST is divided into two parts. The first one is CGST and the second one is SGST. I think you might already be knowing that GST is divided into two parts, CGST and SGST. Okay, for example, if GST amount is 8%, so this 8% will be divided into two parts. Okay, and those two parts will be, one will be the CGST, that is equals to 4%. The other will be SGST, that will be equal to again 4%. And this combination of 4% plus 4% will make up to be a total GST of 8%. Okay, so you should know this, that 4 plus 4 percentage means GST is, total GST is divided into two parts. Okay, and those two parts are what? CGST and SGST. This thing we must understand. Okay, if you have now we can already see, so the total amount that user will be paying will be price plus CGST प्लस SGST. मतलब कि अब CGST और SGST दोनों ही GST से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर आप GST ना लिखते हुए क्या बोलोगे? टोटल अमाउंट जो यूज़र को पे करनी है वो कितनी पे करनी है? प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो, और CGST और SGST. तो ये टोटल अमाउंट यूज़र को पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी आइटम इज़ पेन, है ना. यूज़र को जैसे कि पेन खरीदना, आइटम का नाम डाल दिया, पेन की प्राइस तो डाल दी चलो 100 रुपये. ठीक है, अब GST भी देना है, हर प्रोडक्ट का GST होता है, तो पेन पे 10% GST लग रहा है जैसे, तो 10% GST दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो कितने में हुआ? 5 और 5 में डिवाइड हुआ. ठीक है, तो ये 5 और 5 मिलकर 10% हुआ. CGST 5% और SGST 5%. तो इस तरीके से टोटल ये प्रोग्राम बनता है. चलिए, अब ये तो बेसिक था प्रोग्राम का जो हमने समझ लिया. अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, और अब इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेना है. तो चलो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया आइटम. ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे. ओके, मैं 9 नंबर लाइन पे हूँ यहाँ पर. आइटम मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो. अब आइटम की वैल्यू कौन देगा? तो आइटम की वैल्यू देगा यूज़र. तो जब यूज़र आइटम की वैल्यू देगा तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट फंक्शन. ये देखो, मैंने इनपुट फंक्शन यहाँ पर लगा दिया. अब इनपुट फंक्शन में क्या लेना है? यूज़र से आइटम का नेम लेना है सबसे पहले. तो मैं लिख देता हूँ एंटर नेम ऑफ द प्रोडक्ट.
मैंने ये यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर कोलन लगाकर स्पेस स्पेस दे दिया प्रोडक्ट के आगे, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिख लिया। ये थोड़ा मैंने अपोजिट ये गलत लगा दिया है, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, 1 मिनट। हाँ, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वैल्यू लिख ली, आई एम इनटू द नेक्स्ट लाइन। अब प्रोडक्ट का नाम तो ले लिया, अब कस्टमर से पूछना है तो शॉपकीपर क्या लिखेगा? अब शॉपकीपर को क्या बतानी पड़ेगी? सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी कि प्रोडक्ट कितने में कितने का है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ SP। अब SP में भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट फंक्शन यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, सॉरी, ये मैंने लिख लिया एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। पर एक बात समझो, मेरे को यूज़र से सेलिंग प्राइस लेनी है। अब ये सेलिंग प्राइस तो स्ट्रिंग में आएगी, तो वो नंबर भी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे स्ट्रिंग तो चाहिए नहीं। तो ये सेलिंग प्राइस एक नंबर है, तो यहाँ पर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इनपुट के आगे क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोट। फ्लोट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज़ आ सकती हैं। ब्रैकेट लगाया स्टार्टिंग में, ब्रैकेट लगाया एंडिंग में, एंटर दबाया और मैं आ गया मेरी नेक्स्ट लाइन पे। यूज़र से मैंने आइटम की वैल्यू ले ली, यूज़र से मैंने सेलिंग प्राइस ले ली। अब यूज़र से मुझे क्या चाहिए है कि आप इस प्रोडक्ट का GST बताओ। तो मैं एक और तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ मैं GST रेट। अब यहाँ स्पेस तो दे नहीं सकते आप वेरिएबल के नाम में, तो मैंने R कैपिटल कर लिया, इसको कैमल केसिंग बोलते हैं। तो मैंने ये GST रेट यहाँ पर नाम दे दिया। अब यहाँ पर भी आपको यूज़र से क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, तो इनपुट फंक्शन लगा दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर GST रेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया एंटर GST रेट, मतलब यूज़र अब बताएगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट का नाम डाला, ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डाल दिया और ये प्रोडक्ट का जो GST रेट है वो कितना है, तो इतना है। यहाँ पर भी देखो आगे मुझे यहाँ पर फ्लोट लगाना पड़ेगा, मैं फ्लोट लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फ्लोट फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अगली चीज़, अब देखो, अब समझने वाली बात ये है कि अब CGST और SGST अब हमको यहाँ पर लेना है ना। GST रेट तो लिख लिया, अब ये GST जो है वो GST 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पर पहले इसको CGST लगाता हूँ। तो मैंने CGST नाम का एक वेरिएबल ले लिया। CGST जो मैं ये लगा रहा हूँ, ये CGST जो होगी ये आपके GST रेट की आधी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर GST रेट की आधी होगी, जैसे कि 100 रुपये का पेन है, उस पर 10% की GST लगी, तो 100 रुपये का 10% 1 रुपये, 1 रुपये मतलब आधा 0.5, मतलब कि 50 पैसे CGST, 50 पैसे SGST, मतलब सेलिंग प्राइस पे लगती है ये। तो मैंने लिख लिया SP, मतलब सेलिंग प्राइस का मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस SP, इनटू लगाया। अब इनटू लगा के मुझे ये GST का आधा होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब GST रेट डिवाइडेड बाय 2। ये क्यों लिखा मैंने GST रेट डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि ये GST का आधा होता है ना CGST, तो यहाँ पे मैंने GST रेट डिवाइडेड बाय 2 लिखा, ठीक है। अब ये GST रेट डिवाइडेड बाय 2 तो मैंने लिख दिया, पर आप ये चीज़ ध्यान दो कि ये परसेंटेज होता है। CGST और SGST और GST ये सारी चीज़ें क्या होती है, कुछ परसेंटेज टैक्स लगता है। तो मैं ऊपर भी देखो, ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, मैं यहाँ पर एंटर GST रेट के ब्रैकेट में परसेंटेज भी लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको परसेंटेज लिखना है। अब मुझे GST रेट बाय 2 जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा हर 100 से, क्योंकि परसेंट बोलता क्या है, परसेंट मतलब पर 100। तो मुझे ये GST रेट बाय 2 जो है, इस GST रेट बाय 2 को 100 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर पहले GST रेट बाय 2 को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे SP इंटू वाली वैल्यू को नहीं, सिर्फ GST रेट बाय 2 को ही मुझे 100 से डिवाइड करना है ना। तो मैंने GST रेट बाय 2 को ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। अब SP में मुझे इस GST रेट बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 का इंटू करना है, तो मैं SP इंटू के बाद एक और ब्रैकेट लगाकर इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ताकि ये बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आ जाए। ये मैंने यहाँ पर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए ब्रैकेट एक और लगा दिया। आप क्या होगा, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे और ये ब्रैकेट सॉल्व होकर जो वैल्यू आएगी उसमें SP का इंटू हो जाएगा। जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस का इंटू यहाँ पर हो जाएगा। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये CGST था,
ठीक है। CGST GST का आधा होता है, तो यहाँ पर मैंने GST रेट जो ऊपर आपने वैल्यू डाली 10, 20, 30 जो भी आप डालोगे उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये तो हो गया CGST। अब सीधी सी बात है, CGST जैसा ही एक और कौन होता है, SGST। ये भी कितना होता है, CGST बराबर ही होता है, जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, SGST इज इक्वल्स टू CGST। यहाँ पर पूरी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया SGST इज इक्वल्स टू CGST। मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, आइटम का नाम आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई, मेरे पास GST रेट आ गया, मेरे पास CGST आ गया, मेरे पास SGST आ गया। अब यूज़र को अब अपने को बताना पड़ेगा टोटल अमाउंट कितना पे करा। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल अब यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो आइटम भी मुझे पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी पता चल गई, मुझे GST रेट भी पता चल गया कि CGST कितना लगा, SGST कितना लगा। सारी चीज़ें जब मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अमाउंट। इस अमाउंट जो अपन ने अभी मैंने नोटपैड में आपको समझाया, अब अमाउंट कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो, उसमें क्या क्या जुड़ेगा, CGST जुड़ेगा और SGST जुड़ेगा। तो ये टोटल अमाउंट है जो एक कस्टमर पे करने वाला है। ऑलराइट, तो चलो ये तो बन गया आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम। पर प्रोग्राम बना लेने से सब कुछ थोड़ी ना होगा, आपको तो स्क्रीन पर आउटपुट भी प्रिंट करना है। तो अब ये तो हुआ पूरा का पूरा प्रोग्राम है ना, ये जितनी आपने ये जितनी पूरी कोडिंग करी है, ये सारी की सारी कोडिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। अब आपको इसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, स्क्रीन पर शो करना है, आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो आउटपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए वैल्यूज़, हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन। सॉरी मिट गया, Ctrl+Z, हाँ ठीक है। जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन। ऑलराइट, तो प्रिंट फंक्शन सबसे पहले हम ये क्या कर रहे हैं, एक बिल प्रिंट कर रहे हैं। तो बिल प्रिंट कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं इनवॉइस लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन में लिख लेते हैं इनवॉइस। अब बात समझो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं इनवॉइस लिख रहा हूँ ये प्रिंट क्या होगा, इनवॉइस लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे एज इट इज़। मैं यहाँ पर ये इनवॉइस कोने पे आएगा, इसलिए कोने पे लिखा हुआ ना आए, थोड़ा इंडेंट हो जाए, थोड़ा आगे की तरफ लिखा हुआ आए। तो मुझे ऐसे स्पेसेस स्पेस 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 देने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो आगे लिखा है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप बैकस्लैश लगाओ और T लिख दो। ये जो \T होता है, आपने क्या किया है, यहाँ पर ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लिया है। बैकस्लैश एक एस्केप सीक्वेंस है और T का मतलब होता है टैब, जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब का मतलब होता है 8 नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस आप दोगे और उसके बाद आपको स्क्रीन पर इनवॉइस लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहली लाइन प्रिंट हो गई इनवॉइस, मतलब स्क्रीन पे क्या लिखा आ गया, इनवॉइस। अब सिर्फ इनवॉइस लिखा आने के बाद अब क्या होना चाहिए, अब जो शॉपकीपर है उसको स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ दिखना चाहिए, तो उसको लिखा हुआ दिखना चाहिए आइटम का नाम, है ना। तो यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट फंक्शन लगा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ आइटम नेम। आइटम नेम, ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दी। अब आइटम नेम, तो आइटम नेम की वैल्यू कहाँ से चाहिए, तो ये जो ऊपर मैंने ये 9 नंबर पॉइंट में लिखा है ना आइटम, यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा कुछ वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा आइटम। मैंने रेफरेंस लिया है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। देखो शुरू की चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में है और बाद की चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है ना। बाद की चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में होती है वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होती है। मतलब ये जो इतना मैंने लिखा है ये इतना एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखी जाती है जैसे कि आइटम, तो ये एक रेफरेंस है। ये जो पॉइंट नंबर 9 में आइटम लिखा है ना, ये वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट होकर मिलेगी। मतलब जो यूज़र डालेगा ना एंटर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि उसने डाला पेन ड्राइव, यहाँ पर जैसे यूज़र जो भी नेम ऑफ द प्रोडक्ट डालेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, आइटम नेम और पेन ड्राइव। अगली चीज़ जो अब हमको यहाँ पर प्रिंट करनी है वो है इस आइटम की प्राइस, ठीक है। आइटम नेम लिख लिया, अब आइटम नेम के बाद प्राइस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्राइस। प्राइस एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्राइस के बाहर मैंने जो वेरिएबल लिया था वो था SP, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया SP। तीसरी चीज़, अब थोड़ा सा लॉजिक समझना है। यहाँ पर देखो नाम सेम होना चाहिए। आपने SP छोटा लिखा है तो आपको SP छोटा ही लिखना पड़ेगा,
ठीक है, ये ऊपर से मैच करना चाहिए। आप नीचे यहाँ पर जो 17 पॉइंट में एस पी लिखा है वो ऊपर 10th पॉइंट पे भी एस पी लिखा है, तो यहाँ पर भी वही लिखना है। अब फिर से एक प्रिंट फंक्शन लगाते हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, और अब सी जी एस टी और एस जी एस टी के बारे में बात करते हैं। ये लाइन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी जी एस टी, क्योंकि सी जी एस टी और एस जी एस टी दो चीज़ें आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी जी एस टी, स्पेस देकर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और और ये ब्रैकेट लगाने के बाद सी जी एस टी कितने परसेंट से लगेगा, तो एट द रेट का मैं यहाँ पर साइन लगाता हूँ कि एट द रेट ऑफ सी जी एस टी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है ना, तो यहाँ पर सिंपली मैंने लगा दिया एट द रेट का साइन। इतनी चीज़ मुझे एज इट इज़ प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ को एज इट इज़ लिख दिया। मैं अब ब्रैकेट के बाहर आता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और अब यहाँ पर सी जी एस टी कितना होगा, जी एस टी का आधा होगा, है ना। ये कितना मुझे एज इट इज़ प्रिंट करना था इतनी चीज़ को, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। अब सी जी एस टी कितना होता है, जी एस टी का आधा, ठीक है, ये जी एस टी का आधा होता है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ जी एस टी रेट बाय 2, क्योंकि सी जी एस टी जी एस टी रेट का आधा होता है, तो मैंने इसको जी एस टी रेट बाय 2 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आते हैं। अब ये चीज़ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखी थी, मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगी, ये वैल्यू कहीं से उठाएगी। अब कॉमा लगाकर आपने ये जो ब्रैकेट ओपन किया ना, एट द रेट, और ये ब्रैकेट लिखा है जो ब्रैकेट और एट द रेट, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है एज इट इज़, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ एट द रेट। अब क्योंकि जीएसटी रेट बाय 2 कुछ वैल्यू आएगी, 9 आएगी या 5 आएगी या 4 आएगी, और परसेंट का साइन लगा के नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैं आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब क्या करना है, वैसा का वैसा, जैसा CGST आपने प्रिंट किया है वैसा का वैसा SGST भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लाइन फिर से लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, ये लाइन को आप कर लो कॉपी, और इसको नीचे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि कोलन का साइन भी लगा दें और जिससे क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर CGST की वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो CGST यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया ताकि CGST की वैल्यू जो ऊपर है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी ऊपर वाली लाइन को, और यहाँ पर कर देते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ, एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैंने किया सेलेक्ट, मैंने दबाया Ctrl+C, अब Ctrl+V, ये देखो ये पेस्ट हो गया। अब CGST की जगह SGST कर देता हूँ हर जगह पर, ये हो गया S, यहाँ आगे भी कर देता हूँ S, ये हो गया SGST। ठीक है, CGST और SGST की वैल्यू अब मैंने यहाँ पर लिख दी है। आखिरी में क्या प्रिंट करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट पेएबल, कोलन लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं। अब अमाउंट पेएबल में कोई वैल्यू चाहिए, वैल्यू कहाँ से चाहिए, तो पॉइंट नंबर 14 में देखो अमाउंट का वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें दो, सॉरी AMO। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट, मतलब ये अमाउंट जो लिखा है ये अमाउंट 14 नंबर पॉइंट, ये देखो ये वाले अमाउंट से मैच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो SP प्लस CGST प्लस SGST होकर आएगी, इसलिए इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से अमाउंट प्रिंट करना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ GST.py, एंटर। ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है GST.py नाम से। अब ये जो प्रोग्राम है आपको ये IPython कंसोल में रन होता हुआ दिखेगा। रन करने के लिए क्या करना होता है, ये रन फाइल पे या F5 पे क्लिक करना होता है। मैं यहाँ पर एक बार रन फाइल पे क्लिक करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने रन फाइल पे क्लिक किया IPython कंसोल में रन फाइल लिखा हुआ आ गया। ठीक, देखते हैं अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं। देखो इतनी बड़ी कोडिंग में कभी एरर्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपन देखो, हाँ ये देखो यहाँ पर ये एरर आ गई। क्या एरर आई है, देखो ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है उसमें कुछ एरर दे रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर ब्रैकेट प्रिंट लाइन में 3 ब्रैकेट ओपन हुए हैं और 4 ब्रैकेट्स क्लोज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है। ओके, मुझे 1 ब्रैकेट कम करना पड़ेगा। ये जो आखिरी में CGST लिखा है उसके बाद वाला जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। ओके, यहाँ पर ये किसने एरर जनरेट कर दी, हाँ ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, मेरे को एडिटर पेन में जाना होगा।
ये गया मैं एडिटर पेन में, यहाँ पर देखिए 3 ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, CGST के पहले, एट द रेट के पहले, GST रेट के पहले, और कितने क्लोज हुए 4, तो मैं ये एक ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ब्रैकेट्स काउंट कर लो, 3 ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, 3 ब्रैकेट्स क्लोज हुए हैं। अब ये नंबर सही हो गया, मैंने प्रोग्राम को किया रन, प्रोग्राम को रन करते हैं, आगे आते हैं IPython कंसोल की तरफ, रन फाइल लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ तो एरर्स आ सकती हैं, आप लोग धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनाने लगोगे तो आप लोगों को भी इजीली समझ में आने लगेगा कि ये एरर क्यों आई, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि मुझे देखो ये एरो बना हुआ दिख रहा था, CGST के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एरो बना हुआ है, सिंटैक्स एरर जो लिखा है उसके ऊपर। तो ये एरो को देखकर मैं समझ गया कि यहाँ पर ये कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड एरर बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं देख के समझ गया और मैंने उसको देख लिया कि भैया यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पर मैंने 3 ब्रैकेट्स लगा रखे हैं ओपन करने के लिए और 4 ब्रैकेट्स लगा रखे हैं क्लोज करने के लिए। तो ये देखकर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ एरर है। चलो देखो, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। एरर्स को मैं यहाँ पर एंटर द प्रोडक्ट नेम मैं लिख रहा हूँ पेन ड्राइव, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया मैंने पेन ड्राइव, एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, आइटम की सेलिंग प्राइस 800 रुपये डाल दें, एंटर करते हैं। GST रेट, अच्छा GST रेट डाल देते हैं, कितना डाले, 10%, 18%, चलो 18% डाल देते हैं। देखो ये प्रोग्राम रन होकर आ गया है। यहाँ पर आप देखो इनवॉइस जो लिखा हुआ है, ये इनवॉइस एकदम कोने से लिखा हुआ नहीं आया है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये इनवॉइस जो लिखा हुआ आया है वो स्क्रीन से थोड़ा सा दूर लिखा हुआ आया है, 8 नंबर ऑफ स्पेसेस छोड़कर इनवॉइस लिखा हुआ आया है, ठीक है। आइटम नेम आपने डाला था पेन ड्राइव, प्राइस जो है देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप देकर आया है, प्राइस आपने डाली 800। देखो वो जो लास्ट लाइन लिखी थी ना अपन ने, CGST एट द रेट 9%, देखो यहाँ पर ये सही प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो वो कोड को समझना, वो जो प्रोग्राम की लास्ट की 2 सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो लाइन है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर 800 रुपये प्राइस थी, 800 रुपये पे 9% तो 72, CGST लगा 72 रुपीज़, फिर SGST 9%, तो SGST 9% 72, 72 प्लस 70 124, और 800 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 944। तो जो टोटल अमाउंट यूज़र को पे करना है वो पे करना है 944 रुपये 944। ये देखो यहाँ पर ये आइटम और 800 बहुत सटा सटा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, देखो सिर्फ यहाँ पर मैंने कोलन और स्पेस नहीं दिया ना, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, कोलन लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं, ऊपर भी यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं, स्पेस दे दिया, कोलन के पहले भी स्पेस दे देते हैं, GST रेट के बाद भी यहाँ पे स्पेस कोलन स्पेस दे देते हैं। अब देखो, अब पूरा प्रोग्राम सही है, एक बार और रन करके देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन पे क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, एंटर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसा बुक में एंटर नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है, मैं वही का वही प्रोडक्ट नेम डालता हूँ और वही की वही प्राइस डालता हूँ। तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है प्रोडक्ट का नेम हेडफोन, तो यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ हेडफोन, हेडफोन्स, एंटर दबाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये चिपका हुआ नहीं है, स्पेस आ गया। सेलिंग प्राइस 2195, 2195 रुपये का प्रोडक्ट है। GST रेट डालना है, अच्छा GST रेट डाला मैंने 18%, तो 18% 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एंटर दबाते हैं। जैसे एंटर दबाएंगे ये देखो ये इनवॉइस जनरेट हो गया। क्या इनवॉइस जनरेट हुआ, आइटम का नेम क्या है, हेडफोन्स, प्राइस कितनी है 2195 रुपये, उस पे लगा CGST और SGST, तो 2195 आपकी SP थी, सेलिंग प्राइस थी। इस 2195 रुपये पे जब 9% किया इसका तो 197.5 आया, और SGST भी 197.5 आया क्योंकि 99% है, और 197.5 प्लस 197.5 प्लस 2195 टोटल मेक्स टू 2590.1, मतलब
₹2590 का अमाउंट ये कस्टमर से आपको लेना है। तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूज़र से इनपुट लिया और यूज़र से इनपुट लेकर आप यहाँ पर इसका आउटपुट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी इजी है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम की कोडिंग जो भी है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो लास्ट की सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लाइन है उसको थोड़ा सा समझना, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे आप लोग पूछना। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। आप इस प्रोग्राम को समझें एक बार, और अगर आप लोग इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ डाउट फेस करते हैं तो ज़रूर से मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछें या तो फिर पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछें। ऑलराइट, so thank you students, see you in the next class.